In this class, we will start with selection process. Okay, recruitment. As he said, recruitment. Recruitment is the process where you keep on adding various applications from various sources. Okay, there is no check to the number of applicants who can apply. They can go on adding, and this is the reason why recruitment is often known to be a positive process because we keep on inviting the applications. On the contrary, selection is a process which is finding the best possible candidate out of all those who have applied. Evidently, this means that only when the good people have applied, best people can be selected. है ना? अच्छे लोग apply करेंगे, तभी best person का उसमें से selection हो सकेगा. Next, write down. Selection का लिखिए जल्दी जल्दी. फटाफट लिखिए, इसमें time नहीं लगाना है. It is the process of picking individual. It is the process of picking individual with requisite qualification. Requisite मतलब जितना जो required है. Requisite qualifications and competency to fill jobs in the organization. And competency to fill jobs in the organization. Since recruitment is said to be a positive process, where we go on adding the number of applicants, comma. Selection is called a negative process. Selection is called a negative process because it is the process of elimination. Because it is the process of elimination. Within inverted comma write, the success of selection depends upon good recruitment. The success of selection depends upon good recruitment. Next, when good candidates apply, the best candidates can be selected. When good candidates apply, the best candidates can be selected. Next topic, right? Steps in selection. Steps बनाते जाइए.
ये होता है सिलेक्शन। नाउ एक चीज अपने दिमाग में ये बनाइए कि सिलेक्शन का ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में यही सिलेक्शन का प्रोसेस हो। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन वैरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉम पोस्ट टू डिफरेंट पोस्ट। अगर हमको एक सीईओ सेलेक्ट करना है या एक सीनियर मैनेजर सेलेक्ट करना है, देन हिज प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी डिफरेंट फ्रॉम समबडी who I need to hire for a group C or a group D job, right? Obviously his tests, his aptitude tests, his personality test, everything will be different, you know, for a person whom I want to select as clerk and for a person whom I want to select for a senior post. तो सिलेक्शन का प्रोसेस भी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वैरी करती है और उसका जो नियम कानून होता है वो भी काफी हद तक उस चीज से इम्पैक्ट होता है। जैसे कि किसी इंटरव्यू में हम आपको आपके क्लास में डिस्कस किए कि नहीं पता नहीं। See, since I teach the same thing in every class, so I forget in which class I gave what example. There are some no, I gave it in BBA. There are some exams which have their written and interview weightage as 90:10. 90% तुम्हारे रिटर्न, जैसे मान लो तुमको 200 नंबर का एग्जाम दिया तो तुम्हारा 150 नंबर आया, तो अब इस 150 का 90% को निकाल लेगा, ठीक है, इसका 90% तुम्हारा निकाल लेगा, इतना मार्क्स हुआ तुम्हारा, और 10 नंबर 10% इंटरव्यू के लिए है। प्लस they have their own rules and regulations for calling number of candidates. किसी जगह पे मान लो एक पोस्ट है, इमेजिनरी पोस्ट मान लो, for just one post it depends upon the organization whether they want to call 6 candidates for one post or generally the interview people are called in 3:1 ratio. ठीक है, this is the general figure. For some figures it is 6:1, जहां छोड़ के जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है जिन जॉब्स में, even government jobs like mining companies. Neyveli Lignite Corporation is a Tamil Nadu based plant. This is the government of India Navratna organization, and when they call for interview they will call at 6:1 ratio. Why they call for 6:1 ratio? तो कोई छोड़ करके तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकता है, तो 6:1 बताओ क्यों? हम अभी इंट्रोडक्शन किए तो छोड़ के चला जाए तो उसको वापस से बुला नहीं, बुला कैसे सकते हैं उससे नीचे होगा। हाँ तो ऑब्वियसली उनको, लेकिन 6 कैंडिडेट्स को बुलाने का क्या मतलब है? देखो आई जस्ट गेव यू द एग्जांपल कि इट इज अ तमिलनाडु बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तमिलनाडु में इसका ये है हेडक्वार्टर है चेन्नई, और कुडालोर डिस्ट्रिक्ट में वहां पे उसकी माइनिंग होती है। अब that is a very interior area, ठीक है, तो the chances of people leaving these jobs at these places is higher, इसलिए वो 6:1 के रेशियो में बनाते हैं, क्योंकि साइड बाय साइड वो दूसरे एग्जाम्स में भी अपीयर हो रहे होते हैं, और अगर किसी और में हो जाता है they will leave that job. Understood? तो फाइनल मेरिट लिस्ट कम हो जाने के बाद भी इन 6 का तो इंटरव्यू ले लिया गया ना, अब मेरिट में जो सबसे ऊपर होगा उसको ये एक सीट मिल जाएगी। मान लो उस एक सीट वाले ने इस जॉब को छोड़ दिया, सो द मेरिट में जो सेकंड नंबर पे होगा उसको ये चीज कॉल किया जाएगा वापस, वो भी छोड़ दिया तो थर्ड वाले को कॉल किया जाएगा। मान लो वो रिजेक्ट हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन में, सब कुछ होने के बावजूद, then the person who is next in the rank will get this position. Understood? So selection process depends upon the organization and the kind of job for which you are carrying the selection process. Understood? Now this is the process of selection. Okay? Preliminary interview, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, कोई एक एग्जाम है उसको सिर्फ रेफरेंस के तौर पे आपको सोचना है, क्योंकि ये प्रोसेस हर जगह नहीं होता है। ओके जैसे प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जब रिक्रूटमेंट निकालती है वो कोई प्रिलिमिनरी इंटरव्यू नहीं लेती। This preliminary interview is mostly for people who are recruitment at factory gate बताए थे तुम लोग को,
एक्सटर्नल फैक्टर्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उसी को कहा जाता है रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। कैसे देखो, जैसे शिमला, मनाली, सिक्किम, गैंगटॉक, ये सब जगह पीक सीजन में फ्लडेड रहता है। लोग हिल स्टेशन जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, इतना होता है कि होटल्स आई मीन दे आर ओवरबुक्ड फॉर द कमिंग नंबर ऑफ डेज। तो क्या वो उतने ही स्टाफ से उनको केटर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जब इतने सारे लोग हो जाएंगे कि आपका होटल खाली ही नहीं हो रहा है और खाली रहने का टाइम नहीं है, you just have one booking and just as they leave someone else enters। आपको उतने ज्यादा ड्राइवर्स चाहिए होंगे क्योंकि वो फैसिलिटी पे देते हैं कि भाई हम साइट सीइंग करवाएंगे आपको। वो उनको उतना ज्यादा होटल का स्टाफ चाहिए होगा क्लीनिंग और मेंटेनेंस करने के लिए, उनको उतना ज्यादा रूम सर्विस स्टाफ चाहिए होगा, उनको उतना ज्यादा रेस्टोरेंट में खाना खिलाने वाले लोग चाहिए होंगे। अब रेस्टोरेंट में जितने खाना खाते हैं बुफे में, उतने ही लोग तो रूम में भी ऑर्डर करते हैं एंड यू हैव टू बी रियली quick at serving them, right? So they will go looking for more and more staff and they declare it। वो उस वक्त बता देते हैं कि ये seasonal hiring है, we will hire you and fire as soon as we are done with the peak season, क्योंकि फिर they will not pay that much of cost pay करना होता है। और उन पीक सीजन्स में इतना रेवेन्यू जनरेट होता है कि वो आराम से उन लोगों को पेमेंट कर सकते हैं। और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे हायर दैट नंबर ऑफ पीपल, एल्स यू विल लैग आउट ऑन सर्विस विद योर कॉम्पिटिटर्स। ओके, सो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज जनरली फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। मान लो आपको किसी तरीके का एकदम ही आप अनसूटेबल कैंडिडेट है, ओके, यू आर कंप्लीटली एन अनसूटेबल कैंडिडेट, तो उससे क्या होगा कि आपको जब प्रिलिमिनरी इंटरव्यू यानी हम फ्रंट एंड पे ही तुमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि तुम एकदम अनसूटेबल हो, तो तुमको क्या ही प्रोसेस करना है, ठीक है? तो वैसे चीजों के लिए प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। सो फॉर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू इज गुड फॉर बोथ द एम्प्लॉइज एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, because an employee will be saved from getting processed through all the steps, and an organization will save itself on time, effort, cost, everything। एक खराब कैंडिडेट को आप प्रोसेस करके लास्ट तक लेंगे और फिर वहां पे छांट दिया उसको, ठीक है? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट इज receiving applications। this is the most common thing that you know, right, that we have seen कि अगर आपको भाई कहीं अप्लाई करना है तो आप एप्लीकेशन फिल कीजिए। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि when you are being given when you are asked for submitting your CV in okay, so preliminary interview। next is employment, next is receiving applications। okay, this is the most common form of recruitment। कोई भी एग्जाम आता है, अब देखिए, अब हम आप लोगों को इतना बता दिए हैं एचआर कि आप इतने लायक हैं कि अब कहीं का कोई रिक्रूटमेंट निकलता है तो आप उसको पढ़िए, नहीं समझिएगा तो आके पूछिएगा, बट यू प्लीज अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स। नहीं समझ में आएगा ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, पर ट्राई कीजिए। इतना पढ़ने के बाद प्रैक्टिकली जब आपको चीजें समझ में आने लगती है तो अच्छा फील होता है कि कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? तो रिक्रूटमेंट, किसी का रिक्रूटमेंट निकाल के देखना। अभी जैसे थ्रू गेट 2022 कोल इंडिया का रिक्रूटमेंट आया हुआ है, जरा खाली खोल करके देखना। तो रिक्रूटमेंट जब निकाला जाता है एडवर्टाइजमेंट, दे गिव यू, दे काइंड ऑफ गिव दिस इन द रिक्रूटमेंट कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। ये वर्ड इंटरेस्टेड हमेशा लिखा रहेगा। एवरी वर्ड ऑफ एचआर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि जब आप ऑफर लेटर साइन कर देंगे तो फिर बाद में अगर आप कोई भी फालतू का क्लेम करते हैं तो एचआर आपको उसी बात पे फंसाता है कि आपने साइन कैसे कर दिया। इसका मतलब तो यही होता है आपने क्लियर नहीं किया। यू हैव साइंड द ऑफर लेटर मींस यू हैव एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, सो रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट किया जाता है। व्हाई इज इट रिटन इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई? इसलिए लिखा गया है क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने एमबीए हैं वो उनको
मन है कि PSU में जाकर के हम नौकरी करें. There are MBAs who would go for integrated degree of PhD abroad. There are MBAs who would want their own business to start. Okay, वो अपना business start करना चाहते होंगे. There are MBAs who would join their family business, right? Ma'am, it means mandatory नहीं है. Sanjali, are you asking something? Yes, ma'am. That means अगर ये mentioned है कि interested person ही वहाँ पे मतलब जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वो मैंडेटरी नहीं होगा मैम ना, आप कहना चाहते हैं. हाँ, तो वही बात होती है कि अगर ये मेंशन किया हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स और उसके बाद भी आप अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी नौकरी बाद सारा प्रोसेस के थ्रू हम आपको ले गए और आपके छोड़ के जाने की टेंडेंसी कम है क्योंकि आप इंटरेस्टेड हैं. समझ में आई बात कि ये ऑटोमेटिकली अज्यूम किया जाता है ये बात कि अगर आपने इंटरेस्टेड होने के बाद भी अप्लाई, यहाँ बिग बास्केट आती है, सारे लोग CV डालते हैं? नहीं डालते हैं क्योंकि उनका कुछ अदर प्लान्स होगा. There are people who would want to prepare for BPSC after graduation. There are people who would want to go abroad. There are people who would want to shift to MBAs, MCOM, कुछ भी नहीं है प्लान उनका. तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स का यही मतलब होता है कि योर पॉसिबिलिटी ऑफ लीविंग द जॉब विल बी लो. ठीक है, और सिलेक्शन इज ऑल्सो, सिलेक्शन का प्रोसेस इज ऑल्सो अ कॉस्ट बोर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन. आपको सिलेक्ट कर लिया गया, आपको ट्रेन कर दिया गया, आपको इंडक्शन में भी, इंडक्शन या ओरिएंटेशन यानी ऑनबोर्डिंग जब एम्प्लॉइज की होती है, आप कहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा. ठीक है, कि वहाँ का पॉलिसी क्या है, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर्स कौन है, आपको कैसे कैसे काम करना है, यहाँ कैसे क्या होता है, घुमाया फिराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में ताकि everything takes time. So when it takes time, effort, cost, और फिर आप छोड़ देते हैं तो all the time, all the money, all the effort that went into recruiting you and selecting you goes to vain, goes in vain, right? And the organization has to go through the hassle of finding a new person all over again, right? So induction or training is a huge cost borne by the organization. आपको ट्रेन कर लिया गया 6 महीने और फिर आपने छोड़ दिया. इसीलिए ये मेंशन किया रहता है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई. अंडरस्टूड? So that is application. Now, one thing that I would like to tell you is that when you are receiving application, there are some guidelines given. क्या गाइडलाइंस दिया रहता है कि फोटो आप एक पर्टिकुलर साइज में, एक फॉर्मेट में अपलोड करिए. फोटो शुड नॉट बी ब्लर्ड, फोटो शुड बी रीसेंट, यू शुड नॉट वेयर अ कैप. कोई भी ऐसी चीज, कैप मना करने का क्या मतलब है? मना करने का ये मतलब है कि आप किसी तरह से डिस्गाइज मत कीजिए कि आप कोई और हैं और कोई और एग्जाम दे दे. कितना फ्रॉड होता है एग्जाम में, होता है ना? इसीलिए declaration should be handwritten and it should be clear. It should not be blurred. Your thumb impression should not be blurred. Thumb impression वहां लिया जाता है, वहां पे रजिस्टर हो जाता है, फिर आप जब एग्जाम देने जाते हैं वहां थंब इंप्रेशन आपका लिया जाता है और देखा जाता है कि वो मैच करता है कि नहीं. अब आप जैसे तैसे अगर एप्लीकेशन पे थंब इंप्रेशन दे दिए, वहां तो दे दिया, एक्सेप्ट हो गया, सेंटर पे आपको एग्जाम नहीं देने मिलेगा. ओके, सो सिग्नेचर वगैरह it is without uploading of your signature. दोनों बात बहुत पैराडॉक्सल है क्योंकि बिना सिग्नेचर अपलोड किए वो फॉर्म आगे ही नहीं बढ़ता है. ठीक है, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया. So I came back from center. It was very disappointing. तो ऐसा होता है. नेक्स्ट थिंग, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस. यही स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस जिसमें कि जो अनसूटेबल एप्लीकेशंस हैं, गलत तुमने प्रोफाइल फिल की है, ये वो उसको स्क्रीन कर दिया गया. यहाँ तो हम तुमको बताएं कि कंप्यूटर से जो स्क्रीन किया गया. अब मान लो यहाँ एप्लीकेशंस को CV मान लो तुम अपना, ठीक है. If you draw your application parallel to CV, they ask you to apply and they have a demand that you should have 60% throughout your academic career. ठीक है. And despite knowing this fact, आप ये सोचेंगे अच्छा लो फॉर्म भर CV दे देते हैं ना, क्या होगा देखते हैं.
तो यही होगा कि वो हटा देंगे सीवी आपका, स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस के टाइम पे आपका सीवी हटा दिया जाएगा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। ओके, स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस, screening applications is the first step of rejection. यहां से रिजेक्शन स्टार्ट होता है। देखो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो बहुत छोटे या जो टेम्पररी टाइप का जॉब्स होता है उसके लिए किया जाता है। विद स्क्रीनिंग एप्लीकेशंस इज फ्रॉम स्क्रीनिंग एप्लीकेशन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिजेक्शन स्टार्ट्स। नेक्स्ट स्टेप इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट थोड़ा समझाना होगा, क्या इसको इरेज कर दे। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट से क्या समझते हैं आप, क्या आता है दिमाग में व्हेन आई से दैट एम्प्लॉयमेंट टेस्ट? गुड, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड दिमाग बनाओ थोड़ा, सब आता है बस रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, अभी हम बताएंगे तो यस मैम करने लो। सोचो और किस किस टाइप का टेस्ट होता है? मे बी रिटेन और वेरी गुड एंड हाँ संजनी, व्हाट वर यू सेइंग? मैम जो भी जॉब एप्लीकेंट होते हैं उनकी मतलब सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनका ओरल और रिटन टेस्ट और ठीक है, अदर पर्सनल इंटरव्यू के लिया जाता है। यस मैम। नाम बताओ। नहीं बताया, एक उसने बताया, दोनों करेक्ट है। देखो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के बारे में there is always a controversy, there is always an argument कि can we check everything of an employee through employment test? क्या हम employment test से सब कुछ चेक कर सकते हैं which is required of from an employee? नहीं कर सकते। फिर भी how will we screen that large number of candidates? मान लो पीओ के लिए 5000 सीट है, 1.5 लाख लोग भर्ती है, कैसे स्क्रीन करोगे? There has to be some pattern test लेकर के। Employment test, again I am repeating this, that your selection process depends upon the kind of job you are applying for. ठीक है, किस तरीके की नौकरी है, किस पोस्ट की नौकरी है, उस पर डिपेंड करता है। Employment test cannot judge everything about an employee's character, and this is why we design interview and personality test, right? उसी को बोल सकते हो, रिटन के ही बारे में बात कर रहे हो ना, तो रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, राइट? देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, बहुत तरीके का एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होता है जिससे कि ये जज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे किस तरीके की नौकरी और किस तरीके का कैंडिडेट अपने ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। अंडरस्टूड? वी अज्यूम दिस फैक्ट, पहली बात कि employment tests are designed in such a manner that there is some correlation between what is there in the test का format में क्या-क्या है और हमें employee से क्या चाहिए। They are designed in such a manner, जैसे बहुत बेवकूफ जो रहेगा वो रीजनिंग नहीं बना सकेगा, उसको नहीं समझ में आएगी बात। आप लोग बनाते हैं तो आपको लगता है कि हम रीजनिंग बना रहे हैं, पर एक बेवकूफ आदमी रीजनिंग नहीं बना सकता है, वो नहीं सोच सकता है उतना। ये इस कलर का पहना है, वो उस कलर का पहना है, तो मैच बनाओ, पजल बनाओ, सर्कल बनाओ, दिस इज नॉट इजी। अंडरस्टूड? सॉल्विंग मैथ्स इज नॉट इजी। मैथ्स भी सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है, और सॉल्व करने की बात नहीं है, एक क्वेश्चन को तुम इस क्लास में 40 मिनट में भले सॉल्व कर सकते हो, 4 मिनट में जब सॉल्व करना होगा तब तुम्हारा कंपटीशन है ना। तुम उसी पजल को 5 मिनट से ज्यादा एक पजल बनाने में नहीं लगना चाहिए। 40 मिनट में 50 क्वेश्चन करना, यू डोंट हैव इवन अ मिनट फॉर अ क्वेश्चन। तो जस्ट इमेजिन कितना फास्ट दिमाग दौड़ना चाहिए तुम्हारा
एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में। तो जॉब पे भी बहुत बेवकूफ कैंडिडेट्स स्क्रीन होके ना आ जाएं, इसलिए एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिया जाता है। समझ में आएगा? मैम स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट भी हो सकता है ना? स्पीड एंड एक्यूरेसी दैट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, क्योंकि हर जगह आपको टाइम लिमिट तो फ्रेम कर ही दिया जाता है ना, किस टाइम के बाद आपका लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप बनाए हो या मत बनाए। So we presume one that we presume the fact that there is some correlation between what is there in the format of test and what is required of the features of the employees. The second thing is we assume that the performance of so many candidates in the employment test takes a bell-shaped curve. Okay, takes the shape of a bell curve या normal curve, जिसमें कि हम ये assume करते हैं कि a number of candidates performed less than average। बहुत बेवकूफ वाले हैं, जिनको मैथ समझ में नहीं आता है, डिफॉर्म कर देते हैं सब, पता है ना। And then there are people who perform above average। above average में perform करने वाले लोग होते हैं। So हम ये consider करते हैं। There are people who will just fill up the form में fill up the form भर दो, वो तो नहीं बना पाएंगे until you have prepared and you have worked on your speed and you have worked on your accuracy। Understood? और ये aptitude test में आता है, जो अगर हम written exams की जनरली बात करें, कोई भी एग्जाम अब ऐसा नहीं है, नो एग्जाम यू नेम इट एंड आई टेल यू, नो एग्जाम इज देयर जिसमें कि अब एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाता, हर एग्जाम में पूछा जाता है। दैट इज व्हाई आई टेल यू दैट यू आर जस्ट सेकंड सेमेस्टर, जिसका मैथ्स खराब है वो मैथ्स ठीक कर लो, जिसकी इंग्लिश खराब है वो इंग्लिश ठीक कर लो। ठीक करने का क्या मतलब है, पीएचडी तो करना नहीं है उस पे। एक कंपटीशन की किताब उठाओ और पढ़ो रोज 1 घंटा, बस प्रैक्टिस करो। People do wonders from practice। लोग नया लैंग्वेज सीख लेते हैं, ये तो फिर भी सब कुछ पढ़ा हुआ है। Employment test, okay? Now there are various kinds of employment test। जैसे पहला तुमने बोला aptitude test। The first kind of employment test is aptitude test। Aptitude test is designed to see if there is further scope of development in your personality or not। आपके पर्सनालिटी में फर्दर डेवलपमेंट, अब तुम मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग बना रहे हो तो उससे हम क्या जज करेंगे, ये भी जज कर सकते हैं ना कि ठीक है मैं इतना बना लिया तो आगे डेवलप किया जा सकता है। अब मैथ्स का वो जोड़ ही नहीं पा रहा है तो उसको कैसे डेवलप करेंगे ना, ऑर्गेनाइजेशन में बुला करके हम, राइट? So aptitude test further to see whether you can further develop or not। The next thing is trade or proficiency test। Example जो आदर्श ने बताया, टाइपिंग। ट्रेड और प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब होता है कि स्किल टेस्ट, वैसी चीजें which is required of you to perform or which you already have, जो तुम्हारे अंदर है उसी का टेस्ट किया जाता है, which is required of you to perform at your work site। For example टाइपिंग ग्रुप, देखो एसएससी में एक ग्रुप सी में एक एग्जाम होता है, मानी पोस्ट है which is known as tax assistant। He is the assistant of for helping others। This is tax assistant। आप जब पूरा एसएससी क्लियर भी कर लोगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लास्ट में आपको परफॉर्म करना है। Understood? Because you are required to type that much number of words in specified time। This is called proficiency test जो तुमने बोला। और इसका एग्जांपल्स क्या होगा, आपने अपने सीवी में लिखा है आप ऑपरेटर हैं और आपने अपने सीवी में लिखा है कि मुझे ये पर्टिकुलर मशीन चलानी आती है, they will take your, yes, they'll ask you to operate it।
ट्रेड और प्रोफिशिएंसी टेस्ट. हाँ, कोडिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. नेक्स्ट you have interest test. Next, personality test. And there is one. Intelligence test. The first thing is aptitude test, जो तुमने बताया, to see that if there is any scope for further development of the employee or not. Second is trade or proficiency test, the skills that are already present in you, you're tested for those skills. Third is your interest test. As the name suggests, interest test is carried out to see in which direction you have more interest, so that you can be put at appropriate place, so that you can be utilized in the optimum manner. Next is personality test. See, there are many interviews which do not call themselves interview. They call themselves personality test. For example, UPSC exams. UPSC exams आपको interview लिख के admit card पे नहीं देते. They call it a personality test. Why do they call it personality test? They call it personality test because it is assumed कि ठीक है, हम एक bell shaped curve बनता है, the graph is there, and but still we cannot find everything of an employee through written exams. We need to, through personality tests, it is easier to sit in front of you, derive more information from you, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा information, आपकी जजमेंट कैपेसिटी. आपको केस स्टडी दिया जाता है, हम तुमको क्या बताएं, एग्जाम के हिसाब से वैरी करता है किस पोस्ट के लिए चाहिए. तो आप यूपीएससी का ग्रुप ए सर्विस के लिए टेस्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट, आप समझ सकते हैं. दे विल गिव यू अ केस स्टडी, राइट? they will give you any random question. I tell you na, they will give you any random question, any shit question. आपको उसका कोई रेलेवेंस कहीं समझ में नहीं आएगा कि क्या है, बट दे आर जजिंग योर एबिलिटीज फ्रॉम दैट. आपको बार बार प्रोवोक किया जाएगा किसी ऐसी बात पे जो आपको शायद पसंद ना आए बोलना, बट यू आर ऑलवेज प्रोवोक्ड ऑन दैट कि 3 बार वो आपको बोलेंगे और चौथी बार आपका टेम्पर हाई हो जाएगा. होगा ना, होता है ना, interviews are like that. So interview or personality test is all about keeping the calm when you have answered 5 wrong questions. You don't know 5 wrong questions. Until the 6th question, you just keep calm. Maintain your face like it has not affected me. Okay? And when you don't know anything in your personality test or interview test, simply don't act over smart with them. They are very learned people. They are high level people, regional director and all. हमारे जैसे आपके जैसे बहुत को देखा उन्होंने, वो ऐसे देख के पहचान जाते हैं. ठीक है, हर साल इंटरव्यू लेते हैं 200 लोगों का, तो आप समझ सकते हैं. Very very experienced. See, the thing is, I have been through those benches before coming here. I sat on those benches. I know you're seeing phone. I can see through your gestures. आपको देख के ही हम समझ जाएंगे आप फोन देख रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उसी बेंच से आए हैं. I know the environment there. Understood? I know what they speak, how they speak. So it's all about experience. So don't act smart with them. If you don't know something, simply say, "Sir, I'll go back and read. Sir, I need to read more about this. I'll surely confirm it at my home." और अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल
कि आप बोले कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर, दो आई वुड लाइक टू से दैट मे बी दिस कुड बी द आंसर. Be humble, be polite, and don't lose your temper. Okay? That is your personality test. Next is your intelligence test. There are many organizations which are big and like Google, Microsoft, and there are other big examples also. When you go for an interview there, they have 5-6 people in the board, or maybe 3-4 people in the board, and one person will be always a psychologist. That psychologist will not ask you any questions. That psychologist will just sit and observe your body language. They will see if you're trying to bluff, if you're trying to lie, if you are trying to act over smart, if you are nervous, okay, if you're trying to fabricate things up, झूठ झूठ बना रहे हैं आप, वो लोग साइकोलॉजिस्ट हैं. तो वहां भी स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, बहुत पढ़ाई करके आते हैं वो लोग. यू कैन नॉट ब्लफ देम एट ऑल. ठीक है? सो ये सारी चीजें इंटरव्यू जाने से पहले या टेस्ट के पहले वी नीड टू कीप दैट. एंड वो लोग बेवकूफ नहीं होते. दे नो कि आप फ्रेशर हैं या आप 2-3 साल ही, उनको आपकी क्वालिफिकेशन से वो ये तो जानते ही कि आपको इतने लेवल पे कितना आता होगा. आप सोच के देखिए, आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है ना 10th में इतना ही जानता है लोग. तो आप क्या जज कर रहे हैं उसके नॉलेज पे? not always. Not one answer he gave in the entire class when the class is ending. Yes ma'am. हमेशा नॉलेज पे नहीं. नॉलेज तो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट पे जज हो गया है ना. दैट इज व्हाई यू स्क्रीन्ड थ्रू दैट राउंड. एन एचआर राउंड इज ऑलवेज द लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू. आपका एप्टीट्यूड हो गया, आपका टेक्निकल राउंड हो गया, उसके बाद ही एचआर राउंड आता है. बिकॉज योर ह्यूमन रिसोर्स, योर पर्सनल differences makes the difference. Okay, they will judge your ability to work according to that. So IQ test वो होता है. I already told you कि Google, Microsoft, these organizations, they don't pay much attention to your degrees and your work experience. No, as long as you are important to their organization, you have this IQ, and they think that hiring you can be a benefit for their organization, then only hire you, because they have a well-defined algorithm tool for hiring you. Understood? That is why these companies are big, because of human resource. Understood? Next steps हम लोग अगले क्लास में करेंगे. Just remind me that we did till here. उसमें मैम